Assalamu alaikum everyone. I am your host for today. My name is Mariam and I am the Director Media and Marketing Blood Donation Society Pakistan, and we have our honorable guest Dr. Noor Sabah with us, the most favorite personality. I'm doing the second session with her and it's an honor for me to host her, and as she is the Director Regional Blood Center Peshawar. And welcome on board, ma'am. Over to you. Thank you so much, Mariam. So nice of you for such a warm welcome. It's such a pleasure to be here again with you. Uh, Over to you. Thank you. Ma'am, I would like to ask you about the blood donation. As you all know, as you know, in Pakistan, there is a lack of blood. Like, people are suffering from thalassemia, and most of the people, they don't have excess amount of blood due to some serious problems. So, my very first question is why blood donation is important in nowadays. Mariam, I would focus on this situation, the pandemic that we are going through. Uh, Blood donation has always been a concern in our country, even Exactly. globally. Before COVID, it was published in so many studies that if we donate 1% of, 1% of our population donates blood, we can have a sufficient amount of blood for our thalassemic patients or other patients. But even then, it was a challenge. Now that we are going through a pandemic situation, blood banks are going through a major loss, a major shortage of blood. So these kids who are suffering from thalassemia, from certain cancers, or even emergency cases, we are nationally and internationally facing this issue of ensuring a smoother supply chain in blood banks. So obviously, it has always been an important part of our system, or especially in Pakistan, where we have a major population is going through thalassemia. We have more cases of emergency, like road traffic accidents and so many Yeah. other things, bomb blasts, etc. And then again, cancers are there. So in a country like ours, in this situation, we need to be even more aggressive about it. We need to visit our blood banks more oftenly. We need to donate more oftenly. We need to be there for these kids and all these patients. Exactly. As you said, due to pandemic, most of the people are unaware of this blood donation, and most of the people are like in difficult. Their lives are in difficult, like they are in danger. And what do you want to say to the youth regarding blood donation? That why blood donation is important in this situation? Because as you know, in COVID, universities went online and people are not coming to the universities, and there are no more students because they have went to their hometowns, and it is difficult for them to come into the cities and to donate blood, and because some people are afraid as well. So what would you say to the people who are afraid or who are not coming or who are not willing to donate blood? Hmm. Yes, of course, there is this fear of going to hospitals. Every person these days is, even if they are sick, they are trying to avoid hospitals due to the fact that they might get COVID or something like that. So in such a scenario, I would still say that we need to buckle up. We need to be strong enough, and we need to search around for good hospital blood banks, for places who are licensed, who are doing a good job. For example, in our Peshawar, we have so many good blood banks. I'm not going to name anyone specifically, but if you search around Facebook and Google, you can find some very good blood banks who are following their SOPs regarding COVID-19, and their staff is well trained, and they will just counsel you around if you donate blood. So for youth, definitely, and for every person, I would even say that nowadays that children are staying home most of the times, and the potential donors there, obviously it's mandatory for them to go to blood banks and donate blood. But the kids who are like in school or who are not yet able to donate blood, they should even be training them that after this pandemic situation, once you grow old, it should be your national obligation, or you may call it that you must
once you are 18 or once you are over 16, you must go and donate blood. So nowadays, if we are staying home and if we can deliver these messages online, or if we even to our own siblings or cousins or whoever is at our home with us who are younger, who cannot donate blood yet, so we should even be training them in this regard. And as far as youth is concerned, they should definitely go to the blood banks. They should definitely see the scenarios, or even they should visit the thalassemia centers to see how short they are of blood, and how, I mean, they are Exactly. sick, they are dying, and we are not able to control anything. Like, just coming to the different language Urdu, because most of the people say why you Yes, are guys. Okay, please, please. like, अब हमारे जो लाइक विलेजेस वाली साइड है, वहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। वहां पे बहुत सारे Hmm. लोग हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों डोनेट करें ब्लड, हमारा क्या, हमारा खून है, हम क्यों किसी को दें। तो द Hmm. थिंग इज कि उनको इस चीज की कोई अवेयरनेस नहीं है, और उनमें इस चीज को कोई बताता भी नहीं है। क्यों क्यों और मोस्टली 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 ये थैलेसीमिया की जो मतलब एक डिजीज है, थैलेसीमिया की जो एक मतलब लैक ऑफ ब्लड, थैलेसीमिया के जो ज्यादा पेशेंट्स है वो भी बहुत सारे विलेजेस से बिलोंग करते हैं लोग। हाँ। तो आपका क्या कहना है, बिकॉज आप जैसे है कि आप रीजनल ब्लड सेंटर में हैं, तो आपका कंसर्न ही ब्लड डोनेशन से, और आपका कंसर्न बिल्कुल, तो आपका इस चीज से क्या कहना है, कि आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, कि वो लोग क्या करें कि इस चीज को हम लोग ओवरकम कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की जानें बचा सकें। हम्म। देखिए मरियम, हमारे जो गांव या ऐसी पेरिफेरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर इन चीजों के हवाले से अवेयरनेस तो कम है। लेकिन अगर हमारा ये मैसेज उन तक पहुंच सकता है, या ऐसे लोग जो इस लाइव सेशन को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं या इसके बाद इसको देखें, तो उनके भी कोई ना कोई उन इलाकों में कॉन्टेक्ट होते हैं, तो दे नीड टू स्प्रेड द मैसेज अराउंड। हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि शायद हमारा मैसेज उन तक डायरेक्टली ना पहुंच पाए। तो एनीबडी हु इज इन दिस प्लेटफॉर्म और whoever is on board should convey the message to their peripheral areas, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होके हमने एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करना है ना। मैं आपको बता रही हूँ या मैं 10 बंदों को बता रही हूँ, वो आगे जाके 10 बंदों को बताएं, वो 10 बंदे आगे जाके बताएं, तो इसी तरह ये मैसेज स्प्रेड होगा। लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए जो वहां पर रहते हैं और उनके सराउंडिंग में कोई थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको खून की जरूरत है, तो सबसे अच्छी बात है कि वो ब्लड बैंक में जाके, अपने किसी भी करीबी ब्लड बैंक में जाके, इवन कोई डीएचक्यू है आपके पास, कोई टीएचक्यू है आपके पास, और वहां पर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट रजिस्टर्ड है, या आपको पता हो कि वहां पर कोई थैलेसीमिया का बच्चा आता है, तो आप वहां भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप टर्शरी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो वहां तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं जिनको खून की जरूरत भी होती है। तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इज अ कंसर्न दीज डेज, लेकिन आप अपनी किसी भी करीबी हॉस्पिटल जाके, किसी भी करीबी थैलेसीमिया सेंटर या ब्लड बैंक जाके अपना ये फरीजा तो मुकम्मल कर लें। क्योंकि आजकल के हालात ये हैं कि हम, इट्स समथिंग लाइक अ पार्ट ऑफ सदका। आप जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सदका दें, आप किसी से प्यार से बात करें, किसी को तसल्ली दे दें, तो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ सदका। तो खून तो बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम कहीं बना भी तो नहीं सकते ना, किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर भी तो नहीं कर सकते। तो इट्स एग्जैक्टली। ऑल विद इन यू, यू नीड टू सपोर्ट एवरीबडी। ओके, द थिंग इज कि ब्लड डोनेशन का एक आपने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी यूथ को, कि हमारे लिए भी फायदे, लाइक आफ्टर ब्लड डोनेशन, आफ्टर गिविंग लाइक वन बॉटल ऑफ ब्लड, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मतलब क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ताकि कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग बीमार हो जाएंगे, और कुछ लोगों को लगता है हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस मामले में आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, इस तरह है कि ब्लड डोनेशन के जो फायदे हैं वो आपको, यू कैन अचीव देम फुली, अगर आप ब्लड डोनेशन से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें, और आप मेंटली और फिजिकली ब्लड डोनेशन के लिए प्रिपेयर्ड जाएं। कभी कभी ये होता है कि हमारे डोनर्स आते हैं और उन्होंने नाश्ता नहीं किया होता, उन्होंने पानी नहीं पिया होता, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है। इन केस उन्होंने नहीं खाया पिया, तो हम उनको भेज देते हैं कि आप खा पी के वापस आ जाएं, हम आपका खून ले लेंगे। बट इन अदर केस, जहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे ब्लड बैंक्स में, जहाँ रिप्लेसमेंट डोनर्स आते हैं या अपने पेशेंट के लिए वो ब्लड डोनेट करने आते हैं, तो वो एक मजबूरी में आते हैं। उनका माइंड सेट ये होता है कि मेरे मरीज को खून मिले। तो उन्होंने खुद कुछ खाया हो ना पिया हो, हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रात भी गुजारी होगी, स्ट्रेस में भी रहे होंगे, नींद भी नहीं पूरी होगी, लेकिन वो खून देंगे क्योंकि उनकी एक मजबूरी होती है।
तो होता क्या है कि वो आफ्टर डोनेशन देयर बॉडीज एंड देयर माइंड गेट्स इनटू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आपको बॉडी एक्स हो सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए। बट अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर्ड आते हैं तो आपको जो पोस्ट डोनेशन इमीडिएट इफेक्ट्स हैं उससे भी बच जाते हैं। और ऐसी एडवांटेजेस जैसे योर लीवर गेट्स यू गेट रिजुविनेटेड, योर लीवर गेट्स रिफ्रेश्ड, योर हार्ट गेट्स फ्रेशन अप, योर बोन मैरो गेट्स फ्रेशन अप। और इसके अलावा जो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, आपका खून दोबारा बनना शुरू हो जाता है। आई मीन आप बाहर से तो ठीक है, बंदा मुंह हाथ धो के फ्रेशन अप हो जाता है, बट इट्स लाइक एग्जैक्टली। अंदर से आप साफ हो रहे हैं। तो इट्स डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडीज एक्चुअली। पहले ज़माने में जो हिजामा की का कॉन्सेप्ट होता था, अब चूंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी इंटरनली। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसी बेनिफिट्स मिलती हैं जिससे आपकी बॉडी इंटरनली रीग्रो करती है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पेशेंट एंड डोनर एज वेल। जैसे कि लाइक आई एम सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, तो मतलब 2 साल पहले की अगर हम एग्जांपल लें तो ब्लड डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन हम्म। मतलब अगर अपनी सिटी मुल्तान की बात करूँ या पंजाब वाली साइड पे बात करूँ तो इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग समझते थे कि भाई अगर आप पैसे देंगे तो हम ब्लड डोनेट कर देते हैं। स्टिल अभी भी मतलब 100 में से 20-30% लोग इस तरह के हैं जो ये कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, हम ब्लड डोनेट कर देंगे। लाइक द थिंग इज कि तो मतलब जैसे अब ये लोगों में ये अवेयरनेस हो रही है, स्टिल स्टिल लोग इस चीज से मतलब डर जाते हैं कि हम क्यों ब्लड डोनेट करें या कुछ भी। हम्म। तो एक यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस मामले में, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी? एक्चुअली मरियम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2 साल पहले या 5 साल पहले आप जाएं तो ब्लड डोनेशन वाज वॉलंटरी, ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो फिर भी लोग समझ गए हैं, रिप्लेसमेंट डोनर्स या पेड डोनर्स पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। बट द थिंग इज के हम अगर अपने पास करीबी ममालिक में देखें, ईरान में देखें, इवन बांग्लादेश इज डूइंग गुड। तो अगर उन कंट्रीज में आप देखें तो लोगों को प्राइमरी लेवल से बच्चों को समझाया जाता है कि ये आपका एक कौमी फरीजा है, आपने जाके अपना ये आउटपुट अपनी सोसाइटी में देना है कि आप ब्लड डोनेट करेंगे। और उनके बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एम्बुलेंस के हवाले से अगर आप आज भी देखें, ट्रैफिक जा रही होती है और एम्बुलेंस हॉर्न बजा रहा होता है एंड नोबडी गिव्स देम एग्जैक्टली। वे। हम छोटे होते थे तो हॉर्न्स इतने ज्यादा होते थे, आजकल आप देखें तो हॉर्न्स की वो रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है निस्बतन। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक एक्सेप्टेंस आ रही है चीजों की, सोसाइटी में डिसेंटली रहना, सोसाइटी में लोगों को मौका देना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ रही हैं और इसी तरह ब्लड डोनेशन में भी हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि इट्स वेरी स्लो और हमारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। इस चीज की सप्लाई चेन को फास्ट करना है, यानी हमारे पास इतना ज्यादा खून अवेलेबल हो कि हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी पेशेंट इसको जरूरत हो तो उसको किसी को बोलना ना पड़े। और उसके लिए यही है कि आप वॉलंटरली आपने जाना होगा और आपने खून देना होगा। क्योंकि जिस रेट से ये थैलेसीमिया हमारी कंट्री में फैल रहा है, हमारे पास जो भी डेमोग्राफिक्स हैं या जो भी स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं, वो तो सिर्फ वो स्टडीज हैं जो कि शायद किसी अच्छी सी सिटी में, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपको कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। बट द एक्चुअल सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। हमारे यहाँ एक लॉ है कि आप जब शादी होती है तो उससे पहले हस्बैंड वाइफ को अपनी टेस्ट करवाने चाहिए कि वो थैलेसीमिया के हवाले से देखें कि उनके बच्चों में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है थैलेसीमिया होने की। तो आप देखें, इट्स कंसिडर्ड कल्चरल एंड सोशल टैबू, कोई बंदा नहीं उस चीज को फॉलो कर रहा और उस शादी के बाद उनको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों को पहले से ट्रेन करना चाहिए, प्राइमरी लेवल से मैं कहती हूँ, बल्कि उससे भी पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये कल्चरल ऑब्लिगेशन है। आप जाएं, आप ही इन लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। मैं आपसे ईरान की बात कर रही थी कि वहां पर वॉलंटरी डोनेशन 100% है। कोई बंदा अपने पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करने नहीं आता। उनकी आईडी कार्ड्स में बाकायदा एक नंबर दिया होता है और उनको मैसेज आता है कि आपने इतने दिनों बाद आपने खून बिल्कुल। डोनेट करना है। तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट और हर बंदा जाके बस ब्लड बैंक में खून देता है। और इट्स नॉट लाइक इट्स फॉर सम हिज ओन पेशेंट, हिज ओन रिलेटिव और एनीथिंग। बस उनको पता है कि ये चीज हमने खुद ही
इसको बैंक को पूरा रखना है और इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सो दे आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब कि उन्होंने ऐसे पेशेंट्स जो कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं या बाकी पेशेंट्स जिनको खून में से एक खास खुलियों की जरूरत होती है या हम उनको फैक्टर्स बोलते हैं, तो वो यहाँ तक आगे चले जा चुके हैं कि खून की अवेलेबिलिटी तो एनीवेज इंश्योर्ड है, लेकिन वो फैक्टर्स जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए चाहिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। कुछ कंट्रीज कुछ मतलब प्लाज्मा भेज के बाकी कंट्रीज में वो उनको अल्टरनेट में फैक्टर्स देते हैं और ये लोग वहाँ प्लाज्मा भेजते हैं। तो इन एनी केस दे हैव एनफ ब्लड एंड दे आर आल्सो गोइंग फॉर फैक्टर्स। तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी। अगर ईरान जैसी कंट्री जहाँ पर इतने ज्यादा उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जहाँ पर वो किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट कर ली है, तो क्या हम एथिकली उनसे कमजोर हैं? क्या हम इकोनॉमिकली उनसे कमजोर हैं? नो, वी आर डूइंग अ वेरी मतलब उस हवाले से तो वी आर बेटर देन देम। बट वो एक चीज यहाँ की कमी है ना कि हमने अभी अभी एग्जैक्टली। तक हम यस अभी हम में से हमारे बड़ों ने या हमारी यूथ ने अभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की, तो हम बच्चों को क्या समझाएं? तो वी आर द वंस हु आर गोइंग टू ट्रेन दीज किड्स, और अगर हम ये ना कर पाए तो ये हमारे जिम्मे होगा। तो दे शुड डेफिनेटली बी लुकिंग इनटू दिस। Like as you are the director in regional blood center, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि कोविड से पहले और कोविड ड्यूरिंग कोविड मतलब ब्लड डोनेशन में क्या डिफरेंस आया, और मतलब क्या आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस मोमेंट पे अपने रीजनल ब्लड सेंटर में ब्लड के हवाले से? मतलब क्या ऐसी डिफिकल्टीज है, ब्लड डोनर्स कम है या आप लोगों के पास ब्लड नहीं मिलता? बिकॉज समटाइम्स ये होता है ना कि हम लोग अपने इर्द गिर्द भी कोशिश कर लें तो हमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, हमें किसी भी फाउंडेशन या किसी भी सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उस सिनेरियो में आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं? हाँ, यस मरियम, it was a chaos initially क्योंकि the fear of meeting anybody was exceptionally too much। इशू ये था कि हमें अपनी टीम को भी काउंसिल करना था, हमें डिपार्टमेंट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना था, और हमें ये चीज़ भी इंश्योर करवानी थी कि हमारा स्टाफ बचा रहे, उनको खुदा न खास्ता कोविड हो जाए। और चूंकि हम खुद ही हाई रिस्क पॉपुलेशन है कोविड के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स डोनर्स आते हैं हमारे सेंटर में, तो ये चीज़ भी इंश्योर करवानी थी कि जिनसे हम खून ले रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। मसला ये था कि बहुत ही नई चीज थी, तो इसके हवाले से कोई स्टडीज भी अवेलेबल नहीं थी कि हम उनको देख लें, हम उनसे अंदाजा लगा लें कि हाउ सेफ इट इज, या ट्रांसफ्यूजन से ये फैलता है नहीं फैलता। बट वी वर स्ट्रगलिंग विद इट डे एंड नाइट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो हमने पहले ये किया कि इनिशियली हमने कुछ वीडियोस लॉन्च की। हमारी स्टाफ में से फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, सब ने मिल के एज ए टीम वर्क लोगों को लाइव बताया, लोगों के साथ वीडियोस और व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करने शुरू किए। उसके बाद हमने ये किया कि हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। हमारे जो स्टाफ हमारी होती थी उन्होंने फुल अपने एसओपीज फॉलो करके डांगरी वगैरह पहन के वो जाते थे, हम्म। और लोगों के किसी एक मोहल्ले से पहले से बात की होती थी, और उनके एक एक इंडिविजुअल घर पे जाके उनसे खून लेते थे। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे सेटअप में या ऐसे सरकारी सेटअप में इट वाज अ बिग चैलेंज टू डू समथिंग लाइक दैट कि आप डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है, हर किसी की सेफ्टी का डर रहता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो हमने ये डोर टू डोर कैंपेन चला के कुछ ना कुछ ब्लड ले लिया। लेकिन उसके बाद से जैसे इसका ये कोविड का फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है और ये सेकंड राउंड जब से शुरू हुआ है, तो उसके बाद से आई सी अ मेजर चेंज। लोगों ने अब आना शुरू कर दिया है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ट्रांसफ्यूजन से नहीं होता, डोनेशन से नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू फॉलो योर एसओपीज। तो अब एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ बेहतर हुई है, बट इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबॉडी, और हम भी उसी का हिस्सा थे। ठीक ठीक। लाइक देखिए कि वॉलंटियरिज्म का इतना पहले कोई स्कोप नहीं होता था। लाइक वो लोग हम्म। कहते, अभी भी स्टिल लोग कहते हैं कि व्हाई वी डू नॉन पेड वर्क, लाइक वी आर वर्किंग हम्म। डे एंड नाइट, वी आर सफरिंग डे एंड नाइट, वी आर लाइक हम लोग अपनी नींदें भी मतलब नींदें भी कुर्बान कर हाँ रहे हैं हाँ। इस सोशल वर्क की खातिर, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? समटाइम्स ये चीज अभी भी मतलब मुल्तान में है। अगर मैं इस्लामाबाद का कंपैरिजन करूं तो आई हैव बीन इस्लामाबाद फॉर लाइक 2 months
लाइक कॉन्टिन्यूसली 2 months आई वाज देयर। तो मैंने वहां पे देखा, वहां पे बहुत ज्यादा इस चीज का, वॉलंटियरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप भी है, और लोग शौक से भी करते हैं। और मतलब वहां पे ये चीज नहीं है, वो लोग खुद अपनी तरफ से भी लगाते हैं। तो हम्म मतलब मुल्तान में इस चीज का नहीं है। तो आई अरेंज्ड अ ब्लड कैंप इन 2020 इन दिसंबर। तो आई वाज इन सर्च ऑफ डोनर्स। तो आई वेंट टू ऑल इन द इंस्टीट्यूट्स। तो मुझे स्टिल लोगों के मैसेज आए कि आप, अगर आप हमें 2000 पे करें, वी विल डोनेट ब्लड। मैंने कहा हम्म देखें, ये 2000 मेरी पॉकेट में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पहली बात, ये हम्म 2000 मेरी पॉकेट में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ना मुझे इससे कोई फायदा है ना नुकसान है। ये सिर्फ मैं एक काम अल्लाह के लिए करूँ। क्या पता कि मैं किसी की जिंदगी का वसीला बनूं या कोई और बन जाए। तो बिल्कुल। पैसों की बात, अगर आप नहीं डोनेट करना चाहते ना करें, लेकिन ये पैसों की बात ना करें। स्टिल अभी लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपना खून बेच सकते हैं। तो आई जस्ट यस। वांट यू टू लाइक व्हाट वुड यू से ऑन दिस रिगार्ड, लाइक ऑन दिस मैसेज, कि लोगों में अभी भी इस चीज का है कि अगर हम पैसा देंगे तो पैसा लेके हम खून दे सकते हैं। हाँ, यस ट्रू। हाँ बिल्कुल। और ये इट्स सो डिमोटिवेटिंग कि आप वो जो वॉलंटरी कॉन्सेप्ट स्प्रेड कर कर रहे हैं, उस चीज को आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल अल्टरनेट कर लेती है। आप पैसों की बात कर रही हैं। हमारे पास ये इशू आता है, ऑल्दो हमारे पास पैसों का मसला नहीं आता, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड के आपने डोनेट करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने किसी पेशेंट के लिए डोनेट करना होता है, या अगर वो वॉलंटरी होता है तो वो एक्चुअली वॉलंटरी होता है और उसको उस पर मेहनत की गई होती है। हमारी स्टाफ ने जा जाके उसका माइंड सेट बनाया होता है कि आप आए, आप हम्म। वॉलंटरली खून डोनेट करें। तो वो पेड का कॉन्सेप्ट तो नहीं आता, विच इज वेरी पथेटिक। लेकिन ये है कि हमारे पास ये इशू आता है कि आप जब पेशेंट्स आते हैं और वो ब्लड डोनेट करते हैं, डोनर सॉरी, तो कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं उनको खून की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल उनके, वो किसी थैलेसीमिया बच्चे को जानते हैं, किसी उनके घर में कोई मसला हो गया है। तो हमने क्या किया होता है कि जब हम उनसे खून लेते हैं तो हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आपका ये ब्लड 24 आवर्स में प्रोसेस होगा, इसकी स्क्रीनिंग होगी, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, और वो हमने नेक्स्ट डे जाके हॉस्पिटल में दे देना है। तो किसी पेशेंट को आपका खून लग जाएगा विद इन अ वीक और सो। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू। लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई रेयर ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, या कभी कोई किसी भी ब्लड ग्रुप की शॉर्टेज आ सकती है फॉर मेनी रीजंस। तो आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, बट वी कैन नॉट प्रॉमिस यू कि आपको वही खून मिलेगा, या आपको डेफिनेटली कोई भी रेयर ग्रुप है वो हम अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपका खून तो ऑलरेडी किसी को लग चुका है। तो हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा बहरान है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करें बुरा काम करें जो भी करें, वी वांट समथिंग इन रिगार्ड रिवॉर्ड। और दिस दिस डिलेमा, यही सोच हमारी जो है तो हमें पीछे कर रही है। अगर हम ये सोचें कि हम कर रहे हैं नेकी और दरिया में ढाल के करेंगे, तो आई एम श्योर कि हमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हमें कुछ ना कुछ चाहिए रिवॉर्ड में, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि, हाँ ये ठीक बात है, मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो अल्लाह मियाँ वो चीज कंपनसेट कर लेते हैं कहीं ना कहीं जाके, वो हो जाता है। बट नो, हमने खून दिया है, हमें बदले में क्या मिलेगा? दिस इज सो बैड। आप देखें ना, कॉन्सेप्ट्स हैं। आप शौकत खानम में जब ब्लड डोनेट करते हैं, आपको पता है होता है कि ये किसी कैंसर के मरीज को लग जाएगा, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, सो यू डोंट आस्क देम फॉर ब्लड इन रिटर्न। ठीक है। तो द सेम गोज फॉर दिस सिस्टम, मतलब दिस होल सिस्टम इन पाकिस्तान। आप खून देते हैं तो यू शुड नॉट बी आस्किंग फॉर द स्पेसिफिक खून, या आप ये नहीं कहें कि हमने खून दिया है तो हमें खून चाहिए या हमें रिटर्न में कुछ चाहिए। आपको खून चाहिए, इन एनी केस यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और एवरीबडी विल ट्राई टू गिव यू ब्लड। मतलब अगर ब्लड बैंक है तो उनका तो काम ही यही है ना कि आपको ब्लड दें। तो दिस इज पैथेटिक। इन रिवॉर्ड फिर पैसे मांगना, उससे भी गलत, ज्यादा गलत बात है। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ इस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज तमाम प्रोविंसेस में हैं और एक्टिवली काम कर रही हैं। तो इस चीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए कि whoever इज वांटिंग मनी, whoever इज आस्किंग फॉर मनी और एनीथिंग इन रिटर्न, तो उसकी रिपोर्टिंग डेफिनेटली होनी चाहिए। उनका काम ही यही है कि वो रेगुलेशन देखें और वो रेगुलेटरी चेक रखें इन चीजों पर। और जैसे कि आपने बताया कि ईरान में एक उनके मतलब जो आइडेंटिटी, लाइक नेशनैलिटी आइडेंटिटी हम्म आइडेंटिटी कार्ड है, तो उनमें उनके ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो मैं ये हम्म चाह रही थी कि पाकिस्तान में भी ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना वॉलंटियरिज्म है ना, तो अगर एक मंथ में अगर 25-30 लोग भी ब्लड देते हैं ना, एक दिन में एक बंदा भी देते, तो ऑलमोस्ट वी कैन गेट 30 बॉटल्स, और 30 मतलब वी कैन सेव 30 लाइव्स। हम्म
वी कैन हाँ, सेव 30 एग्री। लाइव्स इन 1 मंथ। अगर हम एक एक दिन को एक एक बॉटल भी एक एक दिन लें किसी से, फॉर एग्जाम्पल हार्डली दो ले लें कुछ भी, लेकिन वी कैन सेव। तो मैं ये कहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी अपर अथॉरिटीज हैं, उनको इस चीज का मतलब इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। बिकॉज हमारे पाकिस्तान में हर रोज थैलेसीमिया के बच्चे बेचारे मर रहे हैं, उनको ब्लड नहीं मिलता। और हॉस्पिटल के निज़ाम कुछ कुछ इतने ख़राब हैं कि वो बेचारे सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। लाइक इन द लास्ट वीक, तो मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग कि मरियम, एक बंदी को ब्लड चाहिए था, वो बेचारी मुल्तान से बाहर से रोज आती थी सुबह। लाइक सुबह 7 बजे अच्छा। उसने हॉस्पिटल आना और मगरिब के बाद जाना कि कोई आके मेरे बच्चे को ब्लड दे दे। बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई सोर्स हम्म। नहीं है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी से हेल्प भी ले सके। वो हॉस्पिटल वालों के आजकल वही है ना, पैसा फेंक तमाशा देख। और आजकल लोग हम्म। सिर्फ उन्हीं को ही पूछते हैं जिनकी पॉकेट में पैसे होते हैं। तो ये ट्रू। चीज बहुत ना लोगों की लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल क्रिएट कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। एक तो वो बेचारे मर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम्म। पहले हमारा जो एक सिस्टम है वो सही हो, और गवर्नमेंट को इस चीज पे लिटरली स्टैंड लेना चाहिए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए एक ब्लड डोनर के लिए, लाइक वो किस एज में ब्लड डोनेट कर सकता है? हाँ मरियम, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी उस हवाले से जो आपने बात की कि पीएनआईसी कार्ड्स में या आईडी कार्ड्स में आपके होने चाहिए ब्लड ग्रुप्स। एक्चुअली दिस इशू हैज बीन टेकन अप विद अथॉरिटीज सो मेनी टाइम्स। जब सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लॉन्च हुआ तो 2010 से वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो बेसिकली इट वाज नेशनल एड्स प्रोग्राम, जिससे फिर नेशनल सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम इट वाज मतलब उसका दूसरा हिस्सा निकला। उसमें ये किया उन्होंने कि जर्मन गवर्नमेंट के सपोर्ट से उन्होंने कोई फेज 1 में 10 आरबीसीज पूरे पाकिस्तान में बनाए। इनफैक्ट एक आपके मुल्तान में भी इस वक्त काम कर रहा है, आपके किडनी सेंटर के पास। जी जी तो जी जी। ये उस वक्त की बात है कि ये इशू नादरा के साथ टेकअप हुआ था नेशनल लेवल पे, but due to certain reasons it was not approved for so many reasons. तो yes, एज a टीम अवाम मिलके अगर इस चीज को फोकस करे कि आईडी कार्ड्स में इस चीज का होना चाहिए, तो आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इसको दोबारा देखेंगी भी और इसको वैल्यू भी करेंगी। क्योंकि दिस इज समथिंग कि आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत कब पड़ती है, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी। अब आराम से सुकून से तो कोई भी ब्लड बैंक आपको 1 घंटे में, 10 मिनट में, या वट एवर टाइम इज नीडेड फॉर द टेस्ट आपको रिपोर्ट दे देगी। बट आपको इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है, आप किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता गए हैं, किसी जलजले में फंस गए हैं, तो वहां आपके आईडी कार्ड में लिखा हो कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, तो हुएवर इज इन दिस विसिनिटी वो आपको खून दे सकता है। तो इसको दोबारा टेकअप करना चाहिए, आई टोटली एग्री। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एज कितनी होनी चाहिए, तो रिकमेंडेड एज आपके पास जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है वो ये है कि 18+ होनी चाहिए। और अपर लिमिट ये है कि हमारी कंट्री में आप देखें तो 60 साल तक बंदे की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमारे यहाँ रिटायरिंग एज 60 ईयर्स है। तो ऐसी कंट्रीज में अगर आपकी सेहत ठीक है एंड यू आर 60, इफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट, तो देन यू कैन इवन डोनेट ब्लड एट 60। बट अदरवाइज इफ यू आर नॉट हेल्दी, वो वैसे भी आपसे ब्लड बैंक वाले पूछ लेते हैं, तो यू शुड नॉट डोनेट आफ्टर 60, keeping in view your health condition. Otherwise, there is no age limit to blood donation. ऐसी countries हैं जहाँ 80s में भी लोग fit हैं, they are exercising, they are working out, they are eating well and they are donating blood. और वो they are like continuously retained donors हैं, वो बार बार donate करते हैं। So there is no upper limit otherwise. Okay, like as everyone says कि it is mandatory to donate blood after 3 months. तो क्या 3 मंथ से पहले ब्लड डोनेट इंसान कर सकता है, लाइक फॉर 1.5 मंथ और 1 मंथ और 2 मंथ, लाइक अभी 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुए? हाँ यस मरियम, प्रीवियसली दिस वाज दीज वर द स्टैंडर्ड्स कि आप 3 महीने बाद डोनेट करें, लेकिन इट हैज चेंज्ड नाउ। अभी जो रिकमेंडेड डेज हैं, अगर आपने होल ब्लड डोनेशन करनी है या आपने पैक्ड सेल्स डोनेट करने हैं, तो आप 56 डेज बाद आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 56 डेज। बट इन अदर केस इफ यू आर डोनेटिंग प्लेटलेट्स, तो आप 7 डेज बाद भी डोनेट कर सकते हैं, 7 दिन बाद डोनेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एफेरेसिस किए हैं, एफेरेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें से आप एक डोनर से 6 से 8 डोनर्स के बराबर खून लेते हैं और वो एक ही पेशेंट को इकट्ठे ट्रांसफ्यूज करते हैं।
तो अगर आप पैक सेल्स की डोनेशन एफेरेसिस कर रहे हैं, तो इस केस में फिर आपको 112 days इज द रिकमेंडेड टाइम, उसके बाद आप डोनेट करें। Okay. Okay. As I am going it to the end now, let's wind up. So I want you to give us a positive message that boosts our energies. कि आप क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी जितनी भी यूथ देख रही है सेशन को, या वो जो देखेगी, कि हम क्यों ब्लड दें और हमें क्यों देते, लाइक अ पॉजिटिव मैसेज और अ मोटिवेशन, व्हाट वुड बी द मोटिवेशन हम्म। you would like You to see, give us? actually, द थिंग इज, आजकल के टाइम में मेरा जो पर्सनल एक फोकस है वो है फीमेल्स पे, और फीमेल्स पे इसलिए है कि जब मैं अपना डाटा देख रही थी तो आई सॉ के अगर फीमेल ब्लड डोनर्स हैव रिड्यूस्ड टू 0.7%। 0.7 इज अ वेरी, मतलब अगर हमारे पास 96-99% लड़के आ रहे हैं, तो उससे कम लड़कियां आ रही हैं। लड़कियां एयरफोर्स में जा रही हैं, फौज में जा रही हैं, एवरीवेयर, डॉक्टर्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स, वेर एवर यू सी देर आर लेडीज। बट इन ब्लड डोनर्स वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। बीइंग गर्ल्स, बीइंग लेडीज और फीमेल यूथ पॉपुलेशन, हमें खुद भी डोनेट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, अपने सिबलिंग्स को भी बताना चाहिए। और जहाँ हम मर्दों के साथ शाना बिशाना हर काम में उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, या हम सोसाइटी का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट ब्लड डोनेशन? वी शुड बी फिट Exactly. एनफ टू डोनेट ब्लड। और आई होप कि इस मैसेज को फीमेल्स और मेल्स आगे जाके पहुंचाएंगे, एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव more than 1% of female donors. If not, then we are still in the same mindset and we are still lagging behind so many countries. Like we need to work on ourselves instead of working on others first. Yes. Because I was saying like I arranged the blood camp, and I was the only one female among 23 boys. Like I was the Hmm. one female who donated Yes. the blood. Like it was a kind of a motivation for me as well. कि यार, I am the, like I can be the example for everyone. Like I can be the example for my friends, for my family, for the people around me. बट द थिंग इज Absolutely. स्टिल मेरे अपने ही सर्कल में कुछ लोग ऐसे हो कहेंगे हम क्यों डोनेट करें ब्लड, Hmm. लाइक दिस इज द Hmm. लैक। अगर आपका ये मैसेज नो डाउट बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी यही चाहूंगी कि जितनी भी फीमेल्स हैं तो एटलीस्ट डोनेट ब्लड वंस इन लाइफ। अगर आपको, हम नहीं Yes. कह रहे कि आपको अब हर 3 महीने बाद दें, लाइक डोनेट ब्लड वंस इन लाइफ, यू कैन बी द हीरो ऑफ समवन्स लाइफ। मुझे And at सबसे least get to know हम्म कि आप पता, आपको एक्सपीरियंस हो, आप किसी को बता सकें हाउ इट फील्स आफ्टर डोनेशन और हाउ इट फील्स ड्यूरिंग डोनेशन, तो आप अपने किसी को तो बता पाएंगे ना। यू शुड एक्सपीरियंस एवरी गुड थिंग वंस इन योर लाइफ, एग्जैक्टली। तो इट शुड बी। It was my dream to donate blood. Like my mother was saying, ke, like you are having a vitamin D deficiency, you won't donate blood. I said नहीं, मैंने मतलब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया, मैंने डॉक्टर से सजेशंस ली, हाँ। मैंने 3-4 से रिकमेंडेशंस ली। मैंने कहा एज बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे हर काम करने का शौक है, मैं ब्लड डोनेशन ना मेरी एक ड्रीम है। तो उन्होंने कहा कि दे दो, अगर आपका एचबी लेवल ठीक है, अगर आप मतलब स्ट्रांग हो, आपकी डाइट वगैरह ठीक है, यू कैन गो एंड डोनेट ब्लड। तो जब मैंने ब्लड डोनेशन के लिए सारा प्रोसेस करी थी ना, तो माई एच बी हम्म। वॉज मोर। तो एंड आई वाज सो हैप्पी। तो उसके बाद जब मैं ब्लड डोनेट करी तो मुझे ना एक अंदर से ही मुझे खुशी हो रही थी कि यार आई यस। एम, इट वाज माय फ्रेंड्स वर आस्किंग कि व्हाई आर यू सो हैप्पी, एंड आई वाज सेइंग कि मेरी इस ब्लड डोनेशन से ना 3 लोगों की जान बच सकती है। तो मेरे लिए इससे बड़ी एक मतलब सक्सेस क्या हो सकती है। And ट्रू। I just want you to say thank you for such a great, for such an informative session, and it is really nice to host you. Thank It's you an so honor. much. It's an honor, Mariam. Thank you so much. Such a pleasure. Thank you so much. Thank you, BDSP, for giving me an opportunity to talk on this topic. Seriously, I love this topic. Thank you so much, ma'am. Sabah, it's a pleasure to Thank you. host you. Thank Thank you. you. Jazakallah khair. Allah Hafiz. Allah Hafiz.